इस टाइम हम बुकित बिंतांग में है, जो कि बहुत बड़ा एक टूरिस्टिक एरिया है यहाँ कोलालमपुर में, और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। रेस्टोरेंट्स का भरमार है, मनी एक्सचेंजर है। हमारे साथ है इमाद भाई फ्रॉम इजिप्ट। Yes. तो हाउ आर यू मैन? Mad Idin, Egypt, from Egypt, business in restaurant Arab food. Arabic restaurant. Yes, So how is going your business? Are you happy? very nice. How much money do you make from this business? 1 month, $50,000. $50,000. Yes. Oh, that's great. Very nice. Is it Yes. true? Yes, really. Okay, so this is your restaurant. Yes. Yes, restaurant work. How many people working here? 5 people. Okay, so which food you serve? Food very nice in Malaysia already. Business very nice. Kuala Lumpur tourist holiday very nice. Good. So कोलालमपुर में न्यू ट्रेन यहाँ पे बनाई गई है, ओपन हुई है MRT। बहुत मैंने इसकी जो है तारीफ़ सुनी है। इसमें लाजमी ट्रैवल कीजिए अगर आप कोलालमपुर आते हो। और फिर उसके बाद हमारे साथ सिमोन है इटली से, यहाँ पे 6-7 महीने से रह रहे हैं और अभी जॉब भी इनको मिली है। तो इनसे इनका पूछते हैं कि इनका क्या जो है व्यू है यहाँ मलेशिया के बारे में, क्योंकि हमारा व्यू डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है। तो सिमोन भाई, वेलकम टू माय शो। Hi everyone. Okay, Simon, you are living here for like 6 to 7 months. Yes, exactly. Yeah, so tell me, what did you inspire to come here and live like for a long time, Yes. What brought you here actually? Well, I have to tell you that the first time I'm coming here, it was last April 2018 for a backpacker tour. And I fell in love with this country because you can see a lot of different places, different landscapes, different cities. And this is maybe the first reason that brings me back to Malaysia. And I'm interrupting you. Yeah. I met him in Cameron Highland because I was also traveling there, Yes. So this is the beauty of travel, that you make friends, and now we are meeting for third time again The third in time, Kuala yeah. Lumpur. So, okay, carry on. Yeah, and of course the life here is very cheap. If you think that in Europe is more expensive, and this is another reason that brings me back to Malaysia. And also I like that this country is very good connected to other Southeast Asian countries. So if you like traveling, you can come here, and with cheap flight you can reach a lot of destinations. Very beautiful destinations. Very beautiful. Yeah. Oh, that's great, man. And after spending 6 to 7 months, Yeah. what do you like the most in here in Malaysia and Kuala Lumpur? Yes, I think that the possibility to work and meet different kind of people coming from different part of the world, and this is good not only for working but also for my personal knowledge and my personal improvement. Yeah, this is maybe the thing that I like more in Malaysia. Oh, that's great. And what you don't like? Actually, this is the opposite question. What you don't like here? I like almost everything, but What there do is you only- hate the only most? Only one thing. Only one thing I know that. Yeah, the hot weather. The hot every day. weather. क्योंकि यहाँ सारा साल गर्मी रहती है, तो आप जब भी आओ। अच्छा, one more thing, just if you can tell me, Yes. like you found a job here. Yes. So how did you find it, and how it is different from Europe doing a job for a European? Like, how did you find it? Yeah. And what is the procedure to get a job here? And like, Yeah, the procedure is very long because I found this job on the net. internet? Yes, in a website. But it's very long the process to obtain the working permission because immigration laws are very strict in this historical period. So बहुत I- सख्त है भाई immigration laws. Yeah. I So- told them in Urdu. So I had to wait a lot of time, but now it's okay. इट्स ओके। ये इनको 3-4 महीने लगे जॉब फाइंड करने में, बल्कि 6 महीने लगे हैं, और अभी उसका प्रोसेस आगे का जो है वीज़ा, जो वर्किंग वीज़ा और परमिट वगैरह, Yeah. उसमें भी अभी काफ़ी टाइम लग रहा है। तो इट्स नॉट वेरी इजी एक्चुअली। एंड हाउ, जस्ट लास्ट टेल मी अबाउट एक्सपेंसेस हियर। आई मीन इफ यू अर्न लाइक 6 or 7,000 or 5,000 ringgit, how much you spend then? Like, what is the living cost here?
Well, I think that it's up. Food and accommodation. Yeah, I think that it's up to you because this is another point about Malaysia, because you can live without spending so much money, and of course you have also the opportunity to spend a lot, but the life cost is not so expensive, and also the rent is not so high, and of course you have to think about, because for example I'm here alone without friends or family, so I have to live with only my salary. So yeah. That's good, man. Thank you very much. कुआलालंपुर को आप शॉपिंग मॉल्स का भी शहर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं और बहुत बड़े बड़े और खूबसूरत शॉपिंग मॉल्स हैं। तो टाइम स्पेंड करने के लिए मेरे ख्याल से इससे बेस्ट जगह कोई नहीं है, अगर आप गर्मी होती है ख़ास तौर पे। और अभी हम पवेलियन मॉल जो सबसे मशहूर है यहाँ बुकित बिंतांग का, उसके अंदर आए हुए हैं। और हमारे साथ है गुलजार भाई, ये यहाँ पे 4 साल से रहते हैं कुआलालंपुर के अंदर, और ये जॉब करते हैं बेसिकली एक मोबाइल प्लाजा है, मोबाइल की शॉप में, लैपटॉप की शॉप में काम करते हैं। तो इनसे यार यहाँ के बारे में पूछते कि यार ये जॉब करते हैं तो जॉब में कितने पैसे कमाते हैं और फिर ख़र्चा कितना होता है, क्योंकि ये रहते भी है यहाँ पे, इनके पास अपना रूम है सिटी सेंटर के पास ही। यार गुलजार भाई पहले तो वेलकम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ अब्दुल वली भाई को, जो मतलब उसको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ जो उसने मुझे अपनी वीडियो में लाया। और बाकी अब वही मैं कह रहा हूँ कि आप यार ये बताओ कि एक बंदा अगर पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से यहाँ आना चाहता है तो यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है, इसका क्या प्रोसीजर है और कितने कमा सकता है? जॉब तो यहाँ पर मतलब किसी भी रेस्टोरेंट पे जाए या किसी भी दुकान पे जाए, अगर वहाँ पर वैकेंसी है तो लाजमी उसको जॉब मिल जाता है। और मलेशिया में काम की कोई कमी नहीं है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में जो भी बंदा आ जाए उसको मतलब 1000-1200 रिंगट से ऊपर नहीं मिलता है। मतलब मैंने खुद भी यहाँ पर स्टार्टिंग में जब मैं आया तो मैं 1000-1200 रिंगट पे काम करता रहा, फिर बाद में मुझे मौका मिला लैपटॉप की दुकान पे, फिर आगे मैं क्या बढ़ता रहा तो अभी मैं 2,500 से 3,000 रिंगट कमा लेता हूँ, कमीशन मिला के सब कुछ। ठीक है। मतलब ये पाकिस्तानी बन जाते हैं 1 लाख रुपया। ज़बरदस्त यार। लेकिन ये वीज़ा का क्या होगा, जो वर्क वीज़ा होता है? वीज़ा तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से, मतलब एजेंट यहाँ पर सारे फ्रॉड करते हैं, भाग जाते हैं, पासपोर्ट ले जाते, पैसे भी लेके भाग जाते। तो वीज़े का तो मैं कुछ मतलब किसी को मशवरा नहीं दे सकता हूँ, जिसका मुझे अपना नहीं होगा यहाँ पर, तो बहुत मुश्किल है वीज़े के बारे में। अच्छा। ये बताएं कि ये तो आप मतलब 3,000 आप कमा लेते हैं यहाँ पे, अब इसमें से खर्च कितना हो जाता है? आपके रूम का रेंट कितना है, फिर खाने पीने में कितना जाता है, ट्रांसपोर्ट पे कितना जाता है, कितना खर्च हो के फिर कितना बच जाता है? यहाँ पर खर्चा जो है मेरा अपना, मैं मतलब अकेले रहता हूँ रूम पे, तो मेरा रूम जो है 450 रिंगट का है। अच्छा। बाकी खाने पीने का पूरे महीने का लगाओ 600 रिंगट, और ट्रांसपोर्टेशन तो यहाँ पर इतनी महंगी नहीं है, 200 रिंगट लगा लो टोटल आने जाने का, मतलब पूरे महीने का, तो ये हो जाते हैं 1300 से 1400 रिंगट। अच्छा। बाकी 1400-1500 रिंगट बच जाते हैं। अच्छा, यानी 50% आपका खर्चा हो जाता है और 50% बच जाते हैं। या अगर कोई और भी मतलब अगर आप घर में बनाना चाहे तो फिर 300 रिंगट खर्चा है पूरे महीने का। अच्छा, तो रूम जो 450 रिंगट का है ये आपका प्राइवेट रूम है? ये मेरा प्राइवेट रूम है। अगर शेयरिंग कहीं पर मिलता है वो 200-250 में पड़ जाता है। अच्छा। शेयरिंग पे मिल जाता है यहाँ पर। तो इनका रूम तो 450-500 रिंगट का है, लेकिन हमारा जो दूसरा इटालियन दोस्त है उसका 2000 का स्टूडियो अपार्टमेंट है, उसने पूरा घर लिया हुआ है, स्टूडियो अपार्टमेंट है और वो भी शहर के पास ही है। तो
वीज़ा का आपने नहीं बताया, तो वीज़ा कैसे मतलब ले वीज़ा सकते तो हैं? मतलब यहाँ पर काम का वीज़ा, काम का वीज़ा उसका तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस पहले कानूनी लीगल प्रोसेस क्या लीगल का है? बता रहा हूँ। पहले उस बंदे को आना चाहिए, यहाँ पर कोई जॉब ढूंढना चाहिए। अच्छा, उसके- विजिट पे, पहले विजिट पे आए। जी। अच्छा फिर यहाँ अच्छा पर किसी मतलब जिस साथ काम करता हो वही बॉस लगा सकता है उसका वीज़ा। अच्छा अच्छा, तो इजी तरीका ये है लीगल तरीका है। कि लीगल तरीका ये है कि वीज़ा तो एक इजी मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, मेरी वीडियोस के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, ऊपर देखिए, ये आपको लिंक नज़र आ रहा होगा। तो आप वीज़ा ले लें, 30 दिन का होता है, उसमें आके यहाँ जॉब ढूंढे, देखिए, एक्सप्लोर करें पूरा कोलालमपुर को, और जब आपको समझ आए बात करें लोगों से, कम्युनिकेशन करें, लोगों को दोस्त बनाएं, लेकिन एजेंटों से बचें क्योंकि यहाँ फ्रॉड बहुत होता है मेरे भाई। और जो आपको वीज़ा मिलता है फिर उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे काम भी मिल जाएगा। और अगर एजेंट लगा भी लेता है तो वो वीज़ा उस दुकान का नहीं होता है जहाँ पर वो काम करता है, तो उसमें इमिग्रेशन पकड़ती है यहाँ पर डेली मतलब इमिग्रेशन की ऑपरेशन होते हैं तो वो पकड़ लेते हैं उसमें। अगर आपका वीज़ा उसी काम का नहीं है, कोई दूसरा काम कर रहे हैं आपको, तो इमिग्रेशन वाले आपको पकड़ेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया है। आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जेलों में हैं। डेली मतलब तो उससे आपके मुल्क का और आपके पासपोर्ट का भी नाम बदनाम होता है, और आपका भी काम ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ कभी मत करें, जिस काम के लिए आपको वीज़ा मिला है वो काम करें, और बिल्कुल लीगल तरीके से करें सारी चीज़ें। कभी भी ज़िंदगी में इलीगल काम मत करें। थैंक यू गुलजार भाई। यार इनका चैनल है वो भी सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये मलेशिया में होते हैं और यहाँ पे वीडियोस भी बनाते रहते हैं, तो इनका चैनल भी सब्सक्राइब करें, इनको भी देखें, और आप भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते जाएँ। अब हम यहाँ पे कोलालमपुर में एक रेस्टोरेंट आए हैं, रूफ टॉप है, ये बहुत अच्छा यहाँ से नज़ारा है। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पूछते रहते हैं, वो है बिज़नेस के हवाले से कि यहाँ पे बिज़नेस कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं कोलालमपुर के अंदर या मलेशिया के अंदर जनरली। तो उस हवाले से पूछते हैं यासिर ख़ान से। तो यासिर ख़ान बताए यार, यहाँ का प्रोसीजर क्या है? एक आम आदमी अगर आना चाहता है यहाँ पे, और एक छोटा कोई स्टोर या कोई शॉप या कोई रेस्टोरेंट या कोई भी काम अगर स्टार्ट करना चाहता है, या कोई बड़े से बड़ा काम स्टार्ट करना चाहता है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? कॉस्ट इस पर कितनी आएगी, जो प्रोसीजरल कॉस्ट है, और उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट बंदे के पास होनी चाहिए? आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। देखिए, बेसिकली अगर मैं तो आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा, अगर आप लोग मलेशिया आना चाहते हैं, विज़िट के लिए काफ़ी बेस्ट जगह है। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो बिज़नेस के बारे में या बिज़नेस के सिलसिले में मलेशिया आने में, तो मैं आप लोगों को ये बात वाज़ेह बताता हूँ कि मलेशिया में जो बंदा कारोबार करना चाहते हैं उसको मिनिमम गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंटेशन है कि आपको 1 मिलियन रिंगिट आपने शो करने हैं। उसके बाद आपको एक कंपनी है जो आपको प्रोवाइड करेगी SDN BHD संदीरी बरहात, उस कंपनी के थ्रू आप कारोबार कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो। ये 1 मिलियन रिंगिट तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए, जो आम आदमी के लिए बिल्कुल मुश्किल है। हाँ, बेसिकली अगर आप यहाँ पे शादीशुदा हो, लोकल सिटीज़न के साथ आप छोटे से छोटे आप कब पैसे से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप 90 रिंगिट का एंटरप्राइज कंपनी मिल जाती है, वो आप 5000 रिंगिट, 6000 रिंगिट या 10,000 रिंगिट से भी आप दुकान स्टार्ट कर सकते हो, या छोटे मोटा कारोबार आप कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे सिटीज़न के साथ शादी की हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे कारोबार नहीं कर सकते। जो आप छोटे मोटे लोग आप यहाँ पे देखते हो कारोबार करते हैं, या कोई उनके शॉप्स वगैरह है, तो वो लोग बेसिकली या तो उनका पार्टनर लोकल होता है, उनका फ्रेंड होता है, या उनका पैसे वैसे कुछ दे होते हैं, लेकिन उसका परमानेंट ओरिजिनल कारोबार वो नहीं होता। बाद में अगर इमिग्रेशन इशू होता है तो वो फ्रंट जो लोकल बंदे को वो फ्रंट पे बैठाते हैं कि ये भाई इसका है, हमारा नहीं है। तो ये रिस्केबल काम है, ये आप लोग ये ना करें। और आप सबसे पहले अगर आप आना चाहते हैं मलेशिया में कारोबार के लिए, तो मेरा ये एडवाइस है आप मलेशिया के विज़िट करें। 1 महीना गुजारे, 1.5 महीना गुजारे, आप चेक करें, या उनके साथ लोगों के साथ बात करें, कंपनीज़ का पता करें, लोगों के साथ कॉन्टेक्ट तो करें। अगर आपको इंटरप्ट करूँ, तो अगर कोई लोकल पार्टनर आपको मिल जाए तो फिर भी नहीं कर सकते आप? लोकल पार्टनर पे आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? मतलब अच्छा बंदा हो फिर तो कोई मसला नहीं है। आप मतलब आप 10,000, 20,000 या 40,000 रिंगिट आप किसी या अच्छा, इस बात से ये पता चली है, जो पहले भी मैं यहाँ पे चूँकि आता रहा हूँ बहुत अरसे तक, बिल्कुल यहाँ पे अगर आपके पास पार्टनर हो ना, लोकल यानी कि यहाँ का सिटीज़न हो, बिल्कुल तो फिर जो है आप कर सकते हैं। लेकिन पार्टनर जो है वो ट्रस्टेबल होना चाहिए कि कल को आपको धोखा ना दे। बिल्कुल ट्रस्टेबल लाजमी होना चाहिए। जी, ट्रस्टेबल क्योंकि नहीं होगा यहाँ पे तो काफ़ी सारे मैंने लोग देखे थे पहले कि वो अपना बिजनेस कर रहे थे, लेकिन लोकल पार्टनर्स के साथ कर रहे थे। उनके साथ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो दैट वुड बी गुड, एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप बड़े स्केल का बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 करोड़ इन्वेस्टमेंट चाहिए, और काफ़ी बड़ा मतलब है कि
पारी करनी पड़ेगी। रिस्केबल भी है। हाँ, रिस्केबल भी है। तो यहाँ के लिए फिर ये बात है कि भाई आप या तो लोकल, अगर आपने शादी की है यहाँ मलेशिया में तो फिर तो इजी है, तो सबको पता है, या फिर आप कोई पार्टनर ढूंढे। लेकिन सबसे जो यासिर खान ने कहा है कि यार सबसे अच्छी बात यह कि आप इस कंट्री को विज़िट करें, विज़िट के लिए अच्छा मुल्क है। मैं भी इसीलिए विज़िट पे आता हूँ, कभी बिज़नेस का मैंने नहीं सोचा। आज से 3-4 साल पहले मैंने सोचा था, लेकिन ये पंगे जो मैंने देखे यहाँ का जो इमिग्रेशन सिस्टम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए मैंने नहीं किया यहाँ पे, ठीक है जी। और बाकी ये है कि स्टिल पाकिस्तानी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे इलीगल भी काम कर रहे हैं। और जॉब का ऑप्शन आपके पास हमेशा है कि आप यहाँ पे आके अपने लिए जॉब ढूंढ सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल जॉब का जो है ज़रा सा बिज़नेस से थोड़ा इजी होता है मेरे ख्याल से। तो गाइस आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इस वीडियो से मैंने आपको डिफरेंट ओपिनियंस दिखाए। हमारा दोस्त जो इटालियन है सिमोन, और जो गुलजार भाई है, और अभी जो है यासिर खान ने भी हमें सारी चीज़ें बताई। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आए एक्सप्लोर करें, देखिए चीज़ें। और यासिर खान जो है इनका चैनल है, ये ड्रोन के बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं यार, ड्रोन एक्सपर्ट है, और साथ में व्लॉगिंग भी करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ बनाते हैं, फिल्म्स आगे बहुत सारा कुछ इन्होंने जो है तैयार किया हुआ है, प्रोफेशनल फिल्म मेकर है। तो इनके इस चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करें, ज़रा जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और फर्स्ट कमेंट में भी चेक करें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय सब, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्या करें, बेल घंटी को प्रेस करें, बेल जो आइकन है ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी उसको वीडियोस की। थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करें।